you all to please welcome him with a big round of applause. At Hindu College, we seek to establish its legacy with its 125 years of glory by presenting to you the Compass, Intellectual Fest of Hindu College. Hindu College, a constituent college of Delhi University, is remarkably one of the most prestigious colleges of India. With being given an All India ranking of 2 by the NIRF this year, it has continued to do justice to its legacy. Compass, the special lecture series, is an initiative of Hindu College Internal Quality Assurance Cell IQAC and is hosted by Caucus, the discussion forum of Hindu College. Caucus was formed in 2007 in Hindu College, University of Delhi. We at Caucus not only discuss and deliberate, we also provide avenues to grow and explore through the various events that we organize. We organize group discussions on a weekly basis where we discuss current events. Moreover, we also have a blog and we encourage our members to contribute to our online blog with their opinions on trending topics. Compass, the Intellectual Fest, is an interactive, integrated and innovative lecture series with 2 days of brainstorming with stalwarts in diverse fields of journalism, education, economics, health policy, law, etc. We are also proud to present Kautilya School of Public Policy as our title sponsor with a vision to make quality the defining element of higher education in India through a combination of self and external quality evaluation, promotion and sustenance initiatives that Caucus, the discussion forum of Hindu College, brings forth in this event. Our first session for day 2 of Kautilya School of Public Policy presents Compass 2023 is going to be a session on the topic Heritage Tourism, Balancing Preservation and Development by the Prince of Udaipur, Dr. Lakshya Raj Singh Ji Mewar. So let's put our hands together to welcome our esteemed guest for this session, Dr. Lakshya Raj Singh Ji Mewar. Now, I would like to invite the host of the session, Rithanya, to take over. Thank you. Thank you, Vasudev. Good morning to one and all present here. Greetings from Caucus, the discussion forum of Hindu College. Kautilya School of Public Policy presents the 4th edition of Compass 2023. I am Ritanya, a first-year student from English Honours. I take immense pride in announcing that this year marks the 125th anniversary of Hindu College and 15 years of Caucus since its inception. Invited guests, teachers and fellow friends, today, we have gathered here to have a moderated session on the topic, Heritage Tourism, Balancing Preservation and Development. Wendell Phillips once said, "The heritage of the past is the seed that brings forth the harvest of the future, a collection of centuries and eras of creative work and strenuous labor. India's rich heritage has lived through the test of time. Our architecture, art and music, flora and fauna is unparalleled in world history. From the Taj Mahal to the Tanjore Temple, from the Sundarban National Park to the Somnath Temple, their charm remains unmatched till date." A fervent believer in upholding ancient legacies and values, Dr. Lakshya Raj Singh Mewar is a philanthropist, educationist, sports patron, business leader, devoted to the cause of public service, promotion and preservation of heritage tourism, and the sustainable development of our nation. As the 76th custodian of the House of Mewar and an author of several books, he is the recipient of 7 Guinness World Records in the field of philanthropy and the Bharat Gaurav Award in the UK. He has also received the MICE Awards, National Tourism Awards and commemorative awards for his extensive dedication and contribution to the welfare of the society. Today, he has graced us all with his presence to share
share his thoughts on balancing preservation and development of heritage tourism. Now, I would like to call upon my fellow friend Rajneesh to give a presentation on the same. Thank you, Ridhanya. Heritage isn't a storyteller's creation, but the embodiment of timeless truth whose existence needs recognition, acceptance, and protection. With this remarkable quote from Dr. Lakshya Singh Mewar, I wish you all a very good morning, ladies and gentlemen. I am Rajneesh Shah and I am presenting Heritage Tourism, Balancing Preservation and Development. India is a land of diverse cultures and tradition, and its heritage sites are a testament to its rich history. India's rich culture and historical heritage sites, ranging from the majestic forts and palaces of Rajasthan to the stunning Taj Mahal, draw millions of visitors from domestic and international levels. It is not only a source of pride for the nation, but also a significant contributor to its economy. According to the Ministry of Tourism, India received over 10 million foreign tourists in 2019, generating revenue around $30 billion. However, the increasing number of tourists has put immense pressure on the sites, leading to the overcrowding, pollution, and degradation of monuments. Balancing preservation and tourism is a complex issue that requires careful consideration. On one hand, tourism is essential for the economic development of the nation. On the other hand, it can harm the environment, local communities, and cultural heritage. The challenge is to find a balance between the two, ensuring that tourism is sustainable and does not cause harm to the heritage sites. A comprehensive approach is necessary to balance conservation and economic development. One solution to this is to limit the number of tourists visiting the heritage sites. Another solution is governmental initiatives for heritage preservation, under which the government has taken several initiatives like Prasad to promote heritage preservation and sustainable tourism. The next solution is the role of local communities. They play a crucial role in preserving India's heritage sites. They are the custodians of the cultural heritage and have a deep connection to the sites. Therefore, it is essential to involve them in preservation efforts. In conclusion, to safeguard India's heritage sites while simultaneously promoting tourism, it is vital to adopt sustainable tourism development practices. More valuable insights on this topic will be delivered by our guest speaker, Dr. Lakshya Singh Mewar, in a while. Thank you for being a wonderful audience. Thank you, Rajneesh, for such an insightful presentation. We thank Sir for obliging us with his presence today and request him to shed some light on his inspiring journey as one of the most impactful public figures. I request the moderators, Aditya Gill and Vineet Kumar, to kindly escort Dr. Lakshya Singh Mewar to the stage and begin the much awaited session. I'd like to thank Dr. Lakshya Singh Mewar Kumar Saab for obliging us and giving a chance to host you at Hindu College for the session on heritage tourism, balancing preservation and development. Without wasting a further time, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, जो इन धर्म रो पालन करे वो मेवाड़ी सिरदार. The one who moves on righteous paths and performs duties which is looked after Almighty. This dua is the motto of Sisodia of Guhid and Guhid dynasty of Mewar. And I feel honored to introduce Rajkumar Lakshya Singh Mewar, who is carrying forward the legacy of Maharana Pratap. The Maharana Pratap.
As we all know, Maharana Pratap Ji was the only Rajput ruler of medieval India who did not surrender against the Mughal Emperor Akbar. His serenity is still present in the air and soil of Mewar. If we visit Mewar someday, we will surely feel the goosebumps, as I am doing right now, sitting in front of Maharaja Sahib. Lakshya Raj Singh Ji, being the descendant of Rana Pratap, is carrying forward the tradition of the oldest dynasty of India and serving the subjects. सर, आपका जन्म तो मेवाड़ राजघराने में भागे या प्रारब्ध कर्मों से हुआ है, लेकिन आप अपने अच्छे व्यवहार और कार्य से उस महान विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. Thank you so much for that introduction, Aditya, and thanks again, sir, for accepting our invitation and being here with us today. So begin with the discussion. My first question, it might sound very cliched, but it's related to the stereotypes which the nation often has when it comes to form royal houses. So, sir, we often come across, various stereotypes that are associated with you and people belonging to royal families, which are often related to the apparent lavishness of your lifestyle. So, sir, what do you have to say about that, about such presumptions which the country has about royal families? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, और आज मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आपको मैं तहे दिल से जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ. और अपने घर वालों को कह सकता हूँ कि मैं कॉलेज गया था. देखिए, मैं बहुत ही गैर औपचारिक इंसान हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे को लगता है कि थोड़े वक्त में, थोड़े समय के अंदर वो चीज़ थोड़ी सी ठहर जाएगी, बैठ जाएगी. पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे 10th और 12th के बोर्ड एक साथ आ गए हों, और मेरे पास में जो सामने जो क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है उसको लेकर मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुका हूँ. पर मेरी गुजारिश ये रहेगी कि माहौल वो हो जब टीचर जो है वो क्लास को अकेला छोड़ के थोड़ी देर बाहर टहलने चले जाते हैं और बच्चे पीछे रह जाते हैं. तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि हम लोग मिलकर जो है वो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत एक सफ़र अगले आधे घंटे का हम लोग निकालेंगे. और पुनः मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं एक बच्चे की तरह था जब मुझे पता पड़ा कि यहाँ से निमंत्रण आया है और मुझे जाना है. तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने योग्य समझा मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जहाँ तक आपके सवाल का अगर अपन बात करें तो देखिए, इसके अंदर कई तरीके के जवाब हैं. अब मैं आपको 2-3 तरीके के जवाब मैं दे देता हूँ. जो आपको पसंद आया उसको रख लीजिएगा. और देखिए, सबसे पहली बात निजी तौर के ऊपर, व्यक्तिगत तौर के ऊपर एज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, मेरे को हकीकत के अंदर अगर आप पूछें कि वो क्या सोच रहे हैं, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. ईमानदारी से अगर वो सोचने लग गए तो फिर इंसान अपना कर्म नहीं कर पाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा. और जहाँ तक उन चीज़ों का सवाल है, उसको अगर दूसरी सोच हमारे दिल दिमाग में आती है तो कुछ करीबी लोग हमेशा आपके पास में रहते हैं जो आपको हमेशा सही और गलत बताते रहते हैं. और मेरा जो है वो बड़ा होना और साथ में रहना अक्सर साहित्यकारों के गोद से ही हुआ है. तो मेरे जितने करीबी दोस्त हैं, मेरे मिलने वाले हैं, या तो वो कलमकार हैं, या तो साहित्यकार हैं, या वो कलाकार हैं. तो और ये लोग ऐसे हैं जिनको चाहो भी तो कुछ और नहीं बुला सकते सच के अलावा. तो उन लोगों की गोद में रहना, उन लोगों के साथ में रहना जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं वो हमारे को एक अच्छे रास्ते पे रखते हैं. और उससे ऊपर सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि सबसे पहले अगर कोई मिले तो वो माता पिता मिले, और उन लोगों ने जो है वो दिशा और जो सीख दी, कोशिश यही रही कि उसी रास्ते के ऊपर चलने का जो है वो प्रयास करें. और दूसरी बात यह है कि इसमें भी कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं कि लोग अगर इस ऐसे परिवारों के बारे में जो है वो सोचें जिस तरीके से, क्योंकि लोगों ने भी मौके दिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती. लोग मौका देते हैं लोगों के बारे में सोचने के लिए. कुछ लोगों ने अपने ईमान तक को बेच दिया, और मेवाड़ के पास में अगर कुछ रहा तो अपना स्वाभिमान रहा, तो और अपनी सादगी रही. तो हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत नहीं है, सादगी में ही क़यामत की अदा होती है. और मेवाड़ में जो है उसको कह कर नहीं, 1500 साल से कर दिखाया है. देखिए, एक बात आप लोगों के साथ, अकड़ जो है ना वो मुर्दा लोगों में होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए. तो मुझे महसूस कराई मैं जिंदा लोग. और ये शायद एक सोच मेरे दिल दिमाग में और अच्छी आई है, जो शायद ऐसी चीज़ों को बताने के लिए थोड़ा बेहतर रहता. खास तौर पे जो हमारी महिला जो है यहाँ पर, उनको इस चीज़ को लेकर बहुत स्वाद आएगा.
और ये क्लीशे का एक सोच है या जो इमारत बनी हुई है वो कम से कम मेवाड़ को लेकर जो है उसको मैं बखूबी जो है घिरा सकता हूँ। और अभी मेरे को पीछे जो है वो आपकी संस्था के इतिहास के बारे में मुझे बताया जा रहा था और मैं बड़ा खुश हुआ इस चीज़ को जानकर। तो एक छोटा सा इतिहास मेरे पास में भी है आप लोगों के साथ में बांटने के लिए, और वो एक हद तक आपके सवाल का भी जवाब देगा। जैसे कि आपने कहा ये राजे महाराजे जितने भी हैं इन लोगों को जो है या तो शराबी या तो क्या कहते हैं अय्याश या जो है वो इस तरीके से ही सोचा गया कि जो महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई को नहीं करवाने देना चाहते हैं, लोगों को कुचल कर रखना चाहते हैं, लोगों को दबा के रखना चाहते हैं। तो ये सारी सोचें आई। पर ये देखिए कितनी खूबसूरत बात है जहाँ तक मेवाड़ को लेकर ये सवाल उठता है। आज से 50 साल पहले नहीं, आज से 75 साल पहले नहीं, आज से 100 साल पहले नहीं, आज से 125 साल पहले नहीं, पूरे 150 साल पहले 1864 के अंदर मेवाड़ में पहली बालिका विद्यालय खोली गई थी। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये लोग उनकी लैविश लाइफस्टाइल में है या ये लोग कुछ नहीं करते या इनको कुछ नहीं आता, ये पढ़ाई लिखाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो ये चीज़ आज की तारीख में जीवंत तौर के ऊपर जो है वो गढ़ी हुई है कि अगर किसी ने पढ़ाई को, शिक्षा को, महिलाओं को आगे लाने के लिए सोचा तो वो मेवाड़ ने सोचा और 1864 के अंदर उस चीज़ के बारे में सोचा गया। एक वो भाषा जो आप और मैं समझते हैं और उसको उस बात को कहकर इस सवाल को मैं विराम दूंगा। तो मैंने आपको कहा जो आपको सवाल पसंद आए वो आप ले लीजिएगा। और ये वाला जवाब जो है वो 2 पंक्तियों के अंदर जो है ख़त्म हो जाता है और ये मेरे थोड़ा दिल के करीब भी है और ये कुछ कम शब्दों में ज़्यादा बयान भी हो जाता है। और ऐसे लोगों को मैं सिर्फ 2 ही बातें कहना चाहता हूँ कि तुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। That was indeed a great insight and a great bash on the stereotypes. Sir, this question will feel a lot closer to home for you. Sir, Udaipur is often referred to as the Venice of the East, and being so intricately linked to the development of the city, what is your vision of changing the notion to Venice being the Udaipur of the West? आपने प्रश्न में मेरे उत्तर दे दिया। मतलब जो है मेरी इच्छा यही है, मैंने पहले कहा था किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर हाँ, मैंने कहा जिसने भी ये लाइन कही है वो आदमी समझदार होगा। नहीं तो देखिए आज की तारीख में जहाँ तक उदयपुर को लेकर एक सोच है, देखिए वो पीढ़ियों की सोच है, कोई व्यक्तिगत मेरी सोच नहीं है और वो अरसों से जो है वो चीज़ चली हुई आ रही है। आज अगर अपन उदयपुर की अगर आप टूरिज्म के क्षेत्र से लेकर अगर चर्चा कर रहे हैं या वो सोच को लेकर अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो देखिए बड़ी खुशी की बात है। आप लोगों को ये चीज़ सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपके पहले सवाल में भी ये इस चीज़ को आप जोड़ सकते हैं या समझ सकते हैं। आपने को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जब हम लोगों ने ये होटल या ढाबों के सिलसिले में जाने की एक सोच को रखा दादाश्री ने, तो तब लोगों ने क्या कहा, अखबारों ने क्या छापा। सबसे पहली चीज़ ये छापी गई कि अब राजा महाराजा झूठे बर्तन धोएंगे और वहाँ से इस दौर का एक शुरुआत हुई। सन 47 के अंदर देश आज़ाद हुआ और ये भी आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि मेवाड़ उन प्रथम राज्यों में से था उस जमाने में जो एक आज़ाद हिंदुस्तान को बनाने में पहला कदम जिसने उठाया। आज की तारीख में एक आज़ाद भारत को बनाने के अंदर जितनी खुशी मेवाड़ को थी वो हम लोग जो है एक ठोस तरीके से उसको कह भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। तो वो एक सोच जो वहाँ से जब शुरू हुई तब जाकर जो है ये पूरा टूरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ऐसा जो आज हम देखते हैं वैसा नहीं है। इसके पीछे की जो एक मेहनत है, इसके पीछे की एक सोच है, वो कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और आज उदयपुर जो है वो अव्वल दर्जे की एक डेस्टिनेशन बनने के ऊपर कैसे पहुँचा, ये सफ़र तब चालू हुआ, उस मेहनत से चालू हुआ। और तब जो है दादाश्री ने ये तय किया कि घरों को जो है हम लोग दूसरे लोगों के लिए खोलेंगे, पर्यटकों के लिए खोलेंगे, सैलानियों के लिए खोलेंगे। तो ये सोच बहुत पहले आ गई। सन 62 के अंदर जो है वो लेक पैलेस का जन्म हुआ, तब जाकर वो होटल है जो जाकर बनी और आज की तारीख में इस देश दुनिया के अंदर जाकर मशहूर हुई और पहले 10 होटल्स में अपनी जो है वो पहचान को जो है वो दर्ज कराती है। उसको लेकर हम लोगों को बड़ी खुशी है और वहाँ से ये दौर जो है वो और सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। फिर दादाजी ने जो है इस सोच को, फिर पिताश्री ने जो है वो इस सोच को आगे बढ़ाया। उन्होंने 2 होटल्स खोली, फिर अन्य और होटल्स को
खुला गया और ये फिर सोच जो है वो चालू हुई और इस चीज़ को पहचाना गया कहीं ना कहीं कि आज की तारीख के अंदर अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ और दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा। तो जब जो चीज़ एक टांग खींचने से या आलोचनाओं से शुरू हुई, अगर अब आप जाकर देखें तो राजस्थान ने अपने आप की एक पहचान पर्यटनों को लेकर ही बनाई है। हर गली में, हर मोहल्ले के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं एक आपको गेस्ट हाउस या होटल मिलेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं कि इंसान जो है इस दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से घर बनता है, घर से गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है और देश से दुनिया बनती है। तो आज की तारीख के अंदर पर्यटन के क्षेत्र को चुनकर वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है हर घर के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। उनको रोजगार जो है वो इस क्षेत्र को लेकर जो है वो मिला हुआ है। तो ये हम लोगों को एक बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है कि अपनी संस्कृति को आगे लाने का एक काम जो है वो हो रहा है, किया जा रहा है। और दूसरा, आज अगर आप देखें इस चीज़ को तो हम लोग ये ज़रूर मानेंगे कि अगर किसी क्षेत्र के अंदर काम करने की आवश्यकता है, इसके अंदर ज़रूर पहचान हुई। शिक्षा एक दूसरा क्षेत्र है जिसके अंदर काम किया जा सकता है और केवल उदयपुर को जो है एक टूरिज्म की पहचान नहीं पर एक हब ऑफ एक्सीलेंस के तौर के ऊपर भी जो है वो जाना जाए, ये एक सोच आने वाले समय की ज़रूरत है। Definitely, sir. Your efforts has lead Udaipur as the leading tourist place of Rajasthan. Because कोई भी पर्यटक आज राजस्थान में आता है तो सबसे पहले वो जिस जगह को देखने आता है वो उदयपुर है। और सर, हमारी भी यही इच्छा है कि उदयपुर पूरे विश्व में इसी नाम से जाना जाए। और definitely, sir, it is your family which is giving glory to the place. Thank you so much, sir. Sir, the next question is also related to tourism. So, sir, tourism, it completely transforms the society to another level, and Udaipur is a hotspot for both domestic and most importantly international tourists. So, sir, जहाँ तक हमने देखा है कि tourism में एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे सामने खड़ी होती है वो है एक lack of connectivity. तो सर, आपके अनुसार सरकार द्वारा ऐसे कौन से कदम उठाए जा सकते हैं जिसके कारण टूरिज्म के क्षेत्र को बढ़ावा मिले और ये जो कनेक्टिविटी की समस्या सामने आ रही है इससे हम निपट सकें? देखिए, सबसे पहली बात हम लोगों को एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि केवल पर्यटकों के लिए ही नई कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। बेशक वो एक जरिया है और एक आवश्यकता है कि जिसके लिए हमको ये चीज़ चाहिए, पर आज की तारीख में उदयपुर जिस तरीके का शहर है, जो आबादी होती जा रही है और वो दिल्ली और बॉम्बे दोनों से 55 मिनट से 1 घंटे की दूरी के ऊपर ही है। तो आज की तारीख के अंदर किसी भी जगह को अगर आगे बढ़ना है तो उसको कहीं ना कहीं जोड़ना जरूरी है। और ये हमारे को कोविड के दौरान ये बात इतनी अच्छी तरीके से समझ में आई कि कोई भी जो क्षेत्र है वो अकेले फल फूल नहीं सकता, उसको हमेशा किसी न किसी की एक आवश्यकता जरूर रहेगी। तो जितना जल्दी हम लोग इस सोच को समझेंगे और इसको हम लोग उतारेंगे वो बेहतर रहेगा। और जहाँ तक सरकार को गुहार लगाने का एक सवाल है, ये ज़रूर है और यहाँ से भी मैं ये बात कहता हूँ और अन्य जगहों से भी मैं इस बात को कहता हूँ कि आज की तारीख में फ्लाइट कनेक्टिविटी, बस कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो उदयपुर के लिए बहुत ही आवश्यक है। और केवल देश से ही नहीं जुड़ना चाहिए पर अंतर्राष्ट्रीय तौर के ऊपर भी हम लोगों को जो है वो जुड़ने की आवश्यकता है कि केवल उदयपुर को हमारे देश के अन्य कोनों से नहीं जोड़े, वो तो जुड़ना ही है। उसमें भी अभी मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ कमी है उस चीज़ को लेकर जिसके अंदर अभी ज़रूरतें हैं उन चीज़ को पूरा करने के लिए और पर्यटकों को, लोगों को लाने के लिए। और उसी के साथ साथ आज अगर हम लोग इस चीज़ के बारे में सोचना चालू करेंगे तो कल हम लोग कहीं ना कहीं पहुँचेंगे और वो है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को लेकर। तो वो दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मैं मानता हूँ कि वो कम है और उसके ऊपर काम होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। और ऐसे कई क्षेत्र हैं ना सिर्फ उदयपुर में बल्कि राजस्थान में जो ये आप बाकी जगहों, आप जैसलमेर ले लीजिए, बीकानेर ले लीजिए, जोधपुर ले लीजिए, ये सारी जगह हैं जो वंचित हैं। तो ये जो चीज़ जो है वो केवल उदयपुर तक नहीं, राजस्थान के अन्य क्षेत्रों के अंदर भी इस चीज़ की आवश्यकता है। जी सर, शुक्रिया सर। इसी कड़ी में सर मेरा एक सवाल है कि सर देयर आर सर्टेन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स sir who have lost their grandeur over time sir due to severe lack of planned preservation sir उनका ध्यान नहीं रखा जाता। So what are the possible ways which you suggest to bring back the lost glory to such places sir? Sir, if we take example of places from Mewar sir, places like Chawan और नागदा जहाँ पे सास बहू का बहुत ही फेमस मंदिर है सर, I visited recently उदयपुर, तो सर उन जगहों को देखने का मौका मिला। तो सर what are your plans to bring back the lost glory to such places?
नहीं, खूबसूरत सवाल है। देखिए, उसकी ताकत कहीं ना कहीं इस सभागार के अंदर ही उपस्थित है। देखिए, आज की तारीख में हम लोग जो हैं, अगर इन जगहों के ऊपर जाना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे, हमारा योगदान देना चालू करेंगे, तो हम लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर जो है सुधार कर सकते हैं। इसके अंदर एक थोड़ी सी चीज़ हम लोगों को समझने की आवश्यकता है, और वो ये है कि देखिए, ये देश ऐसा है ना कि इसकी हर कोने कोने के अंदर जो है इतिहास या संस्कृति कहीं ना कहीं छुपी हुई है। और जब अपने को इतनी तादाद के अंदर कोई चीज़ मिल जाती है, तो हम लोग शायद उसकी कदर करना थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो ये चीज़ हमको समझना है कि जो विरासत हमको मिली है, जो इतिहास हमको मिला है, जो संस्कृति हमको मिली है, वो इतनी खूबसूरत है, पर हम लोग उन चीज़ों को जाकर देखना नहीं चाहते, या उन जगहों के बारे में जानना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते। तो वो कहीं ना कहीं जो है उसको हमारे को वापस पटरी पर लाने की एक ज़रूरत है। पर आज की तारीख में अगर अपन देखें, जैसे कि आपने चावंड के लिए कहा, मेरे को खुशी हुई कि आप वहाँ गए। और हाल ही के लिए व्यक्तिगत तौर के ऊपर अगर आप बात करें, तो मैं खुद भी अभी चंद हफ्तों पहले जो है वो वहाँ पर जाकर आया। तो कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे कर जो है इन चीज़ों को लाने की ज़रूरत है। और ऐसी सारी इमारतों को ठीक करना, रख रखाव करना, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली जुड़ जाती हैं। तो लोग जाना चालू करेंगे, पर्यटक जाना चालू करेंगे, तो पैसे उन संस्थाओं के अंदर आना चालू होंगे, इनका रखरखाव जो है वो वापस जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। दूसरा कि हम लोग एक और तरीके से इन चीज़ों का रखरखाव कर सकते हैं, और वो ये है कि इनका नुकसान नहीं करें। एक ये चीज़ ऐसी होती है कि कहीं पे कोई चीज़ है, हम लोग वहाँ चले जाएंगे तो कहीं रगीटा लगा देंगे, कुछ लिख के आ जाएंगे, कोई चीज़ तोड़ देंगे, या कोई चीज़ फेंक के आ जाएंगे। अगर ये चीज़ें भी अगर हम लोग बंद कर दें, तो काफ़ी हद तक हमारी जो बाकी की जो अन्य जगहें हैं, स्थान हैं, स्थलियाँ हैं, वो जो है अपने आप थोड़ी सी बेहतर होने लग जाएगी। और हम लोग जितने युवा अगर इन चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जानना शुरू करेंगे, और वहाँ देखना शुरू करेंगे, अपने आप परिवर्तन जो है धीरे धीरे जो है वो अपने को नजर आने लगेगा। सर, मेरा सवाल एक ये भी है कि उदयपुर बहुत ही ज़्यादा मशहूर है अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए। सर, महाराणा प्रताप जी ने सर ना ही सिर्फ फोर्ट बिल्डिंग का काम किया या फिर सर कहीं महान युद्ध लड़े, परंतु सर उन्होंने सर जो वाटर प्रिजर्वेशन या फिर सर जो डोमेस्टिकेशन का काम है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। तो सर इस पे अगर कुछ इंसाइट्स आप हमें दें और हिंदू कॉलेज को दें, क्योंकि सर उस टाइम पे इतना मैग्निफिसेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन द वाटर प्रिजर्वेशन की टेक्निक। सर देखिए, उस समय पे क्या था कि सबसे पहली बात तो ये कि हमको ये समझना पड़ेगा कि उदयपुर एक मानव द्वारा बसाया शहर है। वो जो है वो खूबसूरत तो है ही, पर उसके साथ साथ जो है पर्यावरण के खिलाफ काम नहीं किया गया, पर्यावरण के साथ में काम किया गया। और हमको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि पानी के बिना जीवन नहीं है। एक मैंने आर्टिकल लिखा था एक लोकल डेली के अंदर हाल ही में, उसके अंदर मेरा टाइटल ही यही था कि नहीं रहेगा जल तो जल जाएगा जग। तो आज की तारीख के अंदर ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें जो है हमारे पुरखों ने आज से 300, 400, 500 साल पहले सोची थी। एक खूबसूरत स्टैटिस्टिक्स मेरे दिमाग में आती हैं, और वो ये है कि सन 47 के अंदर उदयपुर की आबादी थी तकरीबन 45-50 हज़ार थी। तो 50 हज़ार के आसपास उदयपुर की आबादी सन 47 के आसपास थी। आज की तारीख के अंदर वही आबादी जो है तकरीबन 10 लाख के आसपास है। व्यवस्था वही है जो 400 साल पहले बनी थी। वही व्यवस्था आज की तारीख में उस पूरे शहर को पानी पिला रही है जो 400 साल पहले बनी। आज अगर हमारे को ज़रूरत है तो उन व्यवस्थाओं का ध्यान रखने की, उन व्यवस्थाओं की कदर करने की, और वो जिम्मेदारी जो है पूरे शहर की बनती है। और वो सोच उन लोगों की 5 साल की नहीं थी, 10 साल की नहीं थी, 2 साल की नहीं थी। उनकी अगर सोच थी तो 10-15 पीढ़ियों की सोच थी। तो आज जो है वो हमको समझना पड़ेगा कि जो कार्य हम लोग कर रहे हैं या जो उन लोगों ने किया, वो सुख हम लोग आज देख पा रहे हैं, या वो चीज़ हम लोगों को महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि जिस सोच के साथ में उस काम को किया गया, आज भी वो 15 पीढ़ी बाद, 30 पीढ़ी बाद जो है वो चीज़ उसी बुलंदी से जो है आज की तारीख में खड़ी हुई है, और वो आज 50 हज़ार लोगों की नहीं 10 लाख लोगों का ख्याल कर रही है। So sir, now you have immensely contributed to the society as a philanthropist. And जैसे अभी हमने बात की कि सरकार कौन से कदम उठा सकती है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, तो सर यदि महाराजा साहब खुद ही सरकार बन जाए और अगर आप खुद एक्टिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ जाए, तो सर आपके अनुसार आप ऐसे कौन से कदम उठाएंगे जिससे कि जो राजस्थान और उदयपुर इन पर्टिकुलर उसका टूरिज्म ट्रांसफॉर्म हो सके? नहीं, देखिए, मैं सरकार का अंदर आने का नहीं आने का वो मेरे को खुद को नहीं पता, ऐसा मैंने भी सुना। पर जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, काम जो है वो फिर भी हो रहा है, अच्छी चीज़ें फिर भी हो रही है। अगर मैं एक काम कर सकता, ईमानदारी से अगर आप पूछें, तो मैं इससे अच्छा खूबसूरत मंदिर
मेरे को जो है वो मिल नहीं सकता था इस बात को कहने के लिए, और यहाँ से इस बात को कहने में मेरे को कोई हिचकिचाहट भी नहीं है, बड़ी बल्कि खुशी है। और मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूँ कि अगर 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अगर अमेरिका की है, तो 21वीं सदी हिंदुस्तान की होगी। रास्ता और कहीं से नहीं, शिक्षा से होकर गुजरता है। तो अगर उदयपुर का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, राजस्थान का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अपने देश का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो आज की तारीख में हमारे युवाओं को शिक्षा के प्रति वापस हम लोगों को लाने की आवश्यकता है। ट्रांसफॉर्मेशन की अगर आवश्यकता है तो हमारे को वापस हमारी संस्कृति को देखने की, पढ़ने की, समझने की जो है वो हम लोगों को आवश्यकता है। और तब जाकर कहीं हम लोग देख पाएंगे कि हमारे अंदर का, भीतर का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, घर का भी हो रहा है, प्रदेश का भी हो रहा है और देश का भी हो रहा है। टूरिज्म एक जरिया है। हमको खुशी है कि क्या कहते हैं, आज की तारीख में उदयपुर ने अपनी पहचान और नाम जो है वो पर्यटन के क्षेत्र के अंदर बनाया है। पर क्या उस चीज़ से खुशी है? हाँ बिल्कुल है। पर क्या चीज़ वहाँ आकर अंत हो जाती है, खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। क्या वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत होती है? बिल्कुल होती है। और यहाँ से कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है कि हम लोग जो है सब, और ये आज की तारीख में इस दुनिया के अंदर सबसे कम उम्र का एक देश उभर कर आ रहा है। और अगर हम लोगों को ज़रूरत है तो एक दिशा की ज़रूरत है। हम लोगों को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो शिक्षा की ज़रूरत है। और उसके ऊपर अगर अपन काम करेंगे तो हमको कोई नहीं रोक सकता अगली 21वीं सदी को अपने नाम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और क्या मैं ये मान सकता हूँ कि इस सभा से हम ये संदेश लेके जा सकते हैं कि महाराजा साहब के लिए राजनीति के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं या खुले रहेंगे? वो पूरे देश के लिए खुले हैं मेरी जान। कोई भी जो है वो अकेला मैं क्यों, तो क्या कहते हैं, उसके अंदर जो कोई व्यक्ति आज की तारीख में अपने देश की सेवा करना चाहता है, वो माध्यम हर व्यक्ति के लिए खुला है। वो चाहे खुद निजी तौर पर करना चाहें या किसी संघ के साथ में जुड़कर करना चाहें, तो सब व्यक्ति के लिए जो है खुला है। और आज देखिए, मैं और एक अनदर नोट में अगर ये कहना चाहता हूँ कि आज देखिए ना कि मतलब उदयपुर के लोगों ने, आप लोगों ने अगर जहाँ जिस घर के अंदर जगह दे रखी है, अपने दिलों में जगह दे रखी है, उससे बड़ी जगह मेरे को क्या चाहिए? मैं क्यों दूसरी चीज़ के लिए मैं अपने भागूंगा? तो आज की तारीख में खुशी किस बात की होती है? देखिए, एक गिनेस नहीं, 2 गिनेस नहीं, 7 गिनेस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बना लेना, और वो और किसी क्षेत्र के अंदर नहीं, समाज सेवा के अंदर, यूके पार्लियामेंट के अंदर जाकर भारत गौरव को प्राप्त कर लेना, खुशी किस बात की है? जहाँ आपने खुशी इस बात की है कि उन सारे अलंकरणों के सामने जो है ना, या तो भारत लिखा हुआ है या इंडिया लिखा हुआ है। आज अगर कहीं देश दुनिया के अंदर अगर बात होगी कि अगर समाज सेवा में सबसे ज़्यादा काम किसने किया है, तो सबसे पहले बात उभर कर ये आएगी कि कोई हिंदुस्तानी है, कोई भारतीय है, कोई इंडिया से है जिसने ये काम जो है वो कर रखा है, जो आज की तारीख में दुनिया में तो उस चीज़ को लेकर जो है वो खुशी होती है। जी जरूर, ये जरिए हैं, रास्ते हैं, सबके लिए हैं। अब कौन कहाँ किस वक्त क्या होता है वो ईश्वर तय करेगा। पर इसके अंदर 2 पंक्तियाँ बहुत खूबसूरत है कि नियत जिसकी अच्छी है, किस्मत उसकी दासी है, कर्म जिसके अच्छे हैं, उसके घर में मथुरा काशी। Sir, fingers crossed, and we adore you to the temple of democracy and be the voice of us, the youth. And sir, I and the students of Hindu College, we manifest seeing you at the Parliament someday. Thank you so much. Sir, high rate of tourist activities puts added pressure on the ecosystem. And sir, it adversely affects the environment in numerous ways. Sir, and Udaipur being the place which is very rich for its flora and fauna. Sir, how and what preventive measures do you suggest to the government and to the forest department in particular for creating a balance between the increasing tourist activities and its effect on the ecosystem? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये ना सरकार का ना किसी का, ये चीज़ हम लोगों को समझनी पड़ेगी। ये काम हम नहीं कर सकते कि अपनी टोपी उठाई और किसी और के सर पर डाल दी। तो वो चीज़ों को, जिम्मेदारी को पास करने का काम जो है उसमें मैं थोड़ा सा कम विश्वास रखता हूँ। पर देखिए, सबको सहयोग के साथ में चलना पड़ेगा। और इसके अंदर ये बात मैं कहता हूँ कि देखिए, जो टूरिस्ट हैं उनको जिम्मेदार होना पड़ेगा। उनको हम लोग वंचित कर देंगे, नहीं आप तो जो है वो अतिथि देवो भव, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो काम करेगी वो या तो संस्था करेगी या सरकार करेगी। तो ऐसे काम नहीं चलता है और ना चल सकता है। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि पर्यटक के तौर पर अगर कोई जाता है तो हम ही लोग जाते हैं, कोई तीसरा तो जा नहीं रहा है, जा हम ही लोग रहे। देश किसका है? पड़ोसी का तो है नहीं, अपना है। जगह किसकी है? संस्कृति किसकी है? अपनी है। तो जब तक हम लोग हमारे घर को जितना हमारा घर समझते हैं
जब तक हम लोग किसी एक पर्यटन स्थल को हमारा घर नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। बाकी की सारी बातें जितनी भी हम लोग कर लें, कोई भी हम लोग राय दे दें और रायचंद बन जाएं, ज्ञानचंद बन जाएं, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम लोग खुद जिम्मेदार नहीं बन जाते तब तक काम नहीं चलेगा। तो आज की तारीख के अंदर अगर पर्यटन जाता है तो समस्या इस चीज़ की नहीं आती है कि तादाद बड़ी है, समस्या इस चीज़ की आती है कि हम लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से हरकतें करने लग जाते हैं, चाहे अपने देश में हो चाहे बाहर। जब तक हम लोग हमारी जिम्मेदारी को हम लोग नहीं समझेंगे, अगर हम लोग जा रहे हैं व्यवस्थित तरीके से जाएं, चीज़ों का उपयोग जो है वो ढंग से करें, तब तक जो है वो कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। ये चीज़ मैंने बड़े करीबी से देखी है, पास से जाकर देखी है। लोग अगर आते हैं अपने रिसोर्सेज का अगर ढंग से इस्तेमाल करते हैं और जो है वो उसको हम लोग ज़ाया नहीं करते हैं, तब तक सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से की जा सकती है। तो हमारे को ये समझना है कि आज हम वाटर रिसोर्सेज की, अगर जैसे कि आपने पहले पूछा, उस चीज़ के बारे में ही अगर हम लोग बात करें तो उसको भी हम लोग जो है वो खुला ना छोड़ दें, अन्य चीज़ों को, गंदगी को जो है वो नहीं करें। और जहाँ पर चीज़ें जो है वो गाड़ियों को नहीं ले जाने की है, पैदल चलने की है, तो कोशिश उस चीज़ के ऊपर करें, बल्कि कि हम लोग किसी को फ़ोन कर दें कि हमारी गाड़ी को वहाँ तक जाने दो या ये कर दो। तो इन चीज़ों को जब तक हम लोग जो है दुरुस्त नहीं करेंगे और हमारी जिम्मेदारी को हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक जो है वो समस्याएं जो है वो रहेगी। और केवल इस चीज़ को लेकर एक योजना बना लें या आरोप के तौर के ऊपर देख लें, ये ठीक नहीं। चीज़ें जो है वो बांटने के लिए हैं, पर बांटना जो है वो एक जिम्मेदारी के साथ है। और जैसे कि आज हम लोगों ने भी जो है कुछ चीज़ों को लेकर परिवर्तन करें। पहले टिकट्स जो है वो ग्रुप्स को एक एक को दिए जाते थे, क्योंकि वो दौर था, वो सोच थी, वो समय था। आज की तारीख के अंदर जो है वो अगर एक ग्रुप है तो उसको एक ही दिया जाता है, तो सारे लोगों को कवर हो जाता है। तो उस तरीके से हम लोग पर्यावरण को लेकर भी जो है वो चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और व्यवस्थाओं को भी जो है वो बेहतर कर सकते हैं। पहले हम लोग एक कम दौर के लिए खुला करते थे, 4 से 6 घंटे के लिए। अब हम लोग पूरे 12 घंटे के लिए खोलते हैं अपनी संस्थाओं को, जगहों को। तो जो लोग पहले केवल 6 घंटे के अंदर आते थे, वो अब 12 घंटे के अंदर जो है वो आ सकते हैं। तो उन लोगों को भी थोड़ा सा समय दे दिया है, जगह दे दी है, तो उससे जो सारा प्रेशर जो पड़ता है वो कहीं ना कहीं जो है वो कम हो जाता है। सर, और मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस की है कि जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वेदर इट बी द सिटी पैलेस, सर, वो सब प्लास्टिक फ्री जोन है। मतलब जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो वहाँ पर इतना ज़्यादा चलन में नहीं है। सर, मेरा एक सवाल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है कि सर यहाँ पे हिंदू कॉलेज में भारत के हर कोने से जो छात्र छात्राएँ आते हैं, सर आपका कोई एक किस्सा एनकाउंटर विद द वाइल्ड, कोई फेमस किस्सा जो आप शेयर करना चाहें? यस सर। नहीं, देखिए आज की तारीख के अंदर इन द वाइल्ड तो मतलब जो है वो कभी कभी क्या है कि वाइल्ड घर पे आ जाता है, तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा होगा। आई थिंक उस चीज़ ने जो है वो खबर भी बना ली थी। एक दिन जो है वो पैंथर घर पे आ गया, तो रादर देन गोइंग टू द वाइल्ड केम टू मी, यू नो। तो रात को अचानक एक दिन सिक्योरिटी का 11:30 बजे फ़ोन बजा, तो मैंने कहा इसको ये वो व्यक्ति ऐसा है जो घर परिवार से पहले जिसका फ़ोन उठाना पड़ता है कि भाई ये आदमी रात को 11:30 बजे क्यों फ़ोन कर रहा है। तो जब बात हुई तो सो वी हैड एन इंसिडेंट वेयर द वाइल्ड केम इनटू द हाउस, सो इट वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग। बड़ा अच्छा एक मतलब जो है, जब तक सब चीज़ें कंट्रोल में नहीं थी तब तक तो बड़ी परेशानी थी, पर उसके बाद में जब चीज़ कंट्रोल हो गई तो बड़ा जो है वो थोड़ा सा सांस में सांस आया। और वो पैंथर बाकायदा 2 दिन तक हमारा मेहमान बन के जो है वो रहा घर में, और फिर फाइनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है जो उनको काम करना था वो किया और उसको लेकर गए। तो क्लोजेस्ट ऑन दी अदर साइड, मतलब दूसरे तरीके से देखेंगे तो ये बड़ा एक रोमांचक स्थिति रही, जो शायद बड़ी अजीब भी थी, अटपटी भी थी, पर शांति से निपट गई, जिसमें उसको भी कुछ नहीं हुआ और लोगों को भी कुछ नहीं हुआ। तो आज उसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से और मन से बात कर सकते हैं। सर, जैसे कि हमने इकोसिस्टम के बारे में बात की, प्रिजर्वेशन के बारे में बात की, सर उदयपुर और राजस्थान, सर ये ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहाँ पे ट्राइबल एक्टिविटी काफ़ी इंटेंसिवली होती आ रही है सदियों से। तो सर मेरा सवाल ये है कि जो शाही राज घराना है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ समन्वय बना के और उन्हें किस तरह से सहायता प्रदान करता है ताकि वो भी फल फूल सके आज के ज़माने में? नहीं, देखिए ये तो मतलब मेवाड़ के लिए तो ये चीज़ ऐसी है कि जो एक जिस्म और 2 जान वाली बात है। ये तो ट्राइबल्स और हम लोग बिल्कुल भी, जहाँ तक मेवाड़ का सवाल है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। अपन ने महाराणा प्रताप की चर्चा करी तो उन्होंने तो एक ही थाली में उनके साथ में खाना खाया है,
और तो तब से लेके आज तक हमारे तक जो है वही सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। तो आज भी जो लोग हमारे साथ में घर पे हैं पीढ़ियों से, वो उन्हीं के पुरखे जो है हमारे साथ तब काम करते थे, और आज हम लोग भी उनके साथ में बैठकर उन्हीं की थाली में आज भी हम लोग खाना खाते हैं। तो वो चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं इतने वक्त के बाद में ना बदली है, ना बदलाव में नज़र आ रहा है। और एक चीज़ अगर आपको देखने के लिए करनी है तो मेवाड़ का जो कोट ऑफ आर्म्स है, जो क्रेस्ट है, जो लोगो है, तो एक तरफ पे जो है वो भील वॉरियर जो है वो खड़ा हुआ है। तो सर्वोच्च सम्मान जो है जो आज की तारीख में हमारे सर पर या हमारे दिल के करीब जो रखते हैं उनको वहाँ बिठा रखा है। तो वो स्थान है उनका जो, और तब से लेके आज तक हम लोग सब साथ हैं। और सर प्रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, जैसा कि मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने सोचा था कि अपन सब आसान सवाल पूछेंगे, अपने जो बात हुई थी पीछे आप लोग ने तो सब डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया। नहीं सर, लेकिन इन सवालों का बखूबी जवाब दे रहे हैं, ये सवाल भी आसान सवाल ही हो चुके हैं। सो सर, जैसा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो उदयपुर के जैसे पिचोला झील हो गई, फतेह सागर झील हो गई, इन झीलों में कुछ समय पहले तक बड़ी संख्या में मगरमच्छ पाए जाते थे, जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। और तो सर इस पे आप क्या कहेंगे सर, क्योंकि उनका प्रेजर्वेशन, वो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, तो उनका प्रेजर्वेशन लाइक उसके लिए कैसे कदम हम उठा सकते हैं? नहीं, जहाँ तक इनका सवाल है, हाल ही के अंदर मतलब जो है वो कुछ समय पहले ही जो है इनकी तादाद वापस धीरे धीरे जो है वो बढ़ती हुई हम लोगों ने देखी। पैंथर्स की जो तादाद है उसको भी हम लोगों ने बढ़ते हुए देखा। इसमें कोई शक की बात नहीं कि पहले ये चीज़ थोड़ी सी डामाडोल थी, स्थिति गड़बड़ाई हुई थी, इसमें कोई शक नहीं। पर आज अगर आप वापस देखेंगे और हाल ही में देखेंगे तो इन जगहों के ऊपर आपको वापस ये सारी जानवर और प्रजातियां जो है वो आपको वापस देखने को कहीं ना कहीं जो है वो मिल जाएंगी। और ये एक बहुत बड़े ट्रैवलर्स हैं, तो ये ट्रैवल करते रहते हैं, तो सीजन वाइज जो है ये लोग आपको दिखते रहेंगे और नहीं दिखते रहेंगे। तो जो दौर आता है उस समय के अंदर आपको बिल्कुल दिखते हैं। और हाल ही में भी जो है वो जो सर्दियाँ बीती सर्दियाँ थी उसके अंदर जो पिछली सर्दी के अंदर जो तादाद दिखी थी और इस सर्दी में जो तादाद दिखी थी वो कम से कम 1.5 थी। तो उस चीज़ को लेकर हम लोगों को भी खुशी है कि आज की तारीख में उस चीज़ को लेकर काम किया जा रहा है, या जो भी चीज़ हुई वो अच्छी हुई जिससे कि इनकी तादाद जो है वो बढ़ी गई। सर ये मेरी नहीं, जनता की डिमांड है कि काफ़ी देर हो गए हैं, कुछ आपने अर्ज नहीं किया, तो सर कुछ चंद पंक्तियाँ हमारी प्रेरणा के लिए अगर आप कहना चाहें, उसके बाद सर हम आखिरी सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो अब मेवाड़ की बात करें तो पंडित नरेंद्र मिश्र की बात नहीं करें, और महाराणा प्रताप की जो है वो चर्चा हो रही थी, तो उनको लेकर एक बहुत ही खूबसूरत जो 2 पंक्तियां हैं जो मेरे दिल के भी बहुत करीब हैं। और मेवाड़ का सारांश जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ के अंदर बखूबी जो है वो पिरोया गया है, और वो संस्था के लिए भी कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि लागू होता है। तो ये 2 पंक्तियां जो है वो मेवाड़ से आपकी संस्था के नाम पे मैं करता हूँ कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मिरथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा, रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। और आपकी कुछ पंक्तियां जो मैंने चुराई हैं, सारे सबक किताबों से नहीं सीखे जाते, कुछ सबक जिंदगी भी सिखा देती है। सर, टू कंक्लूड द सेशन, वी वुड लव टू नो योर एक्सपीरियंस इंटरैक्टिंग विद अस at Hindu College and being an inspiration for the youth, being a youth icon. What would be your message for the student community so that we take it with us back home and motivate ourselves? देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मतलब जो है वो इन चीज़ों के अंदर थोड़ा कम विश्वास रखता हूँ, पर एक जुमला जरूर है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास तौर पे इस दौर के अंदर वो हमारे लिए बहुत आवश्यकता है इस चीज़ को समझने की और करने की। और जहाँ तक यहाँ पर आने का सवाल है, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं मतलब अभिभूत हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ याद कर लिया। ये सबसे पहली चीज़ है, मेरे रेज्यूमे के अंदर अपडेट हो जाएगी। मैं इंतज़ार ही कर रहा था कि ये घंटा ख़त्म हो और मैं अपने रेज्यूमे को जो है लिंक्डइन पे जाकर जो है वो अपडेट कर सकूँ। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को प्रमोट करने का यहाँ पर कोई विचार नहीं है। मैं इस वजह से उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग जाकर फॉलो करें, पर मैं वाकई में दिल से जो है वो मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया और मेरे के ऊपर एक कॉलेज का ठप्पा जो है वो ज़रूर लगा दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक एक सोच को कहने का सवाल है, एक युवा के तौर के ऊपर मैं यही मानता हूँ कि सोच को कभी इतनी गहरी मत करना कि फैसले कमज़ोर होने लग जाए। सोच को उतनी ही रखना जिससे कि आप लोग अपने फैसले को जो है पूरे तरीके से फतेह कर सकें और उसके ऊपर आप जो है कायम रहें। और उसको जब से हम गहरी करने लग जाते हैं तो पैर या सोच जो है वो लड़खड़ाने लग जाती है कि सोच को इतनी गहरी मत करो कि फैसले कमजोर।
सर रेज्यूमे और सीवी तो मैं मेरी अपडेट करूंगा कि मेरे को एक सौभाग्य मिला महाराणा प्रताप के वंशज जो आप हैं सर, आपका इंटरव्यू लेने का। इट इज अ ग्रेट pleasure for me and the complete student community of Hindu College. Thank you. Thank you so much, sir. So with this, we have now come to the end of this session, and now we would like to open the floor for the audience. Sir, दर्शकों के कुछ सवाल होंगे जो आपसे सीधा पूछ सकते हैं. Khamagani Ogam. First of all, thank you for such an insightful session. I am Yogiraj Singh from your Mewar province only, and my father is a Jagirdar in your province. Sir, when yesterday I told him that you are coming to our college, he became so elated, and he asked me to tell you something. So he said that महाराज कुमार से कहना कि उन्होंने आज के समय में जो राजपूती कल्चर और हेरिटेज को मेंटेन कर रखा है, उसके लिए पूरा राजपूत समाज ही नहीं बल्कि पूरा राजस्थान उनका तहे दिल से धन्यवाद करता है. Good morning, sir. Morning, sir. Sir, I am Hitesh, student of third year, Department of PE program. Sir, I don't have a particular question, but just an informal interaction. I would like to inform you that I am from the Maharana Mewar Public School. You would be glad to hear that, sir. And recently only I used the opportunity to meet you at the NMCF annual award ceremony. My father was there to receive the award. So, thank you so much, sir. On behalf of Hindu College to take out time from your busy schedule to come here. Welcome once again to Hindu College. Thank you. बिजी शेड्यूल ऐसा करते हैं कि वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है. तो वक्त अगर आज की तारीख में कोई ढाबा वाला ये कहे ना कि वो बिजी है तो वो निहायती झूठा है. तो अगर सबसे कोई खाली लोग अगर अभी बैठे हैं ना तो ये होटल वाले ही बैठे हैं. तो आप लोग ये बिल्कुल भी अपने दिल से जो है वहम अगर आप लोगों के किसी ने बताया हो कि ये आदमी बिजी है तो उसको निकाल दो दिल से. वो बिल्कुल खाली है, और जब इतना प्यार और इतना अपनापन मिलेगा तो आदमी अगर बिजी भी होना तो उसको छोड़ के जो है वो आप लोगों के पास दौड़ते हुए चला है. Namaste, sir. Sir, my question is pertaining to some narratives in history, especially when it comes to Mewar. So, like we are in the Hindu College, University of Delhi, and there's an academia that's going on since years. And in that, first the portrayal of the history of Mewar is very less. That's one thing. But the second is about the sources of history. So, if you come to the Battle of Haldi Ghati, so the things that are in Mewar, that if you go to Mewar, we see a different narrative altogether. And that is more factual. There is an inscription that tells about land grant that's been given, I think 4 months after the Battle of Haldi Ghati by the Maharana. But such things are not appearing in this academia. And what is the royal family of Udaipur doing to correct it? Is there any particular sort of, like we have great histories. I have the Veeri Vinod with myself, and I want, like after the session, if you could sign it, because you are the guide of the, what do you say, the Kingdom of Mewar, okay, the erstwhile kingdom. But what is the royal family doing for it? So is there not particular, like something, some effort that can be done to the, so that at least a very objective, there is nothing called as true history. Okay, there is all a narratives, we know that. But something that is more objective to our particular interest, or perhaps what is there in the particular academia. So shouldn't it reflect, you're in the Hindu college, but such things are not being taught in our classrooms. आई थिंक ये केवल आप ही की नहीं पूरे देश की समस्या है. मतलब ये ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति विशेष तक जो है वो सीमित है. सोच आपकी अच्छी है. देखिए, किसी भी अच्छी चीज़ को दबाने की हर व्यक्ति ने कोशिश करी है, तो हम ये तो मान ही लेते हैं कि मेवाड़ ने कुछ अच्छा ही करा होगा. तो खुशी ये है कि अच्छी चीज़ों को जो है आगे आने से जो है वो रोका जाता है. और हम लोगों का प्रयास यही है कि उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करें. हम लोगों ने आज की तारीख में लाइब्रेरीज खोल रखी हैं. स्कॉलर्स को वहाँ पर जो है हम लोग आमंत्रित करते रहते हैं. वो आते रहते हैं, उनके पेपर्स बनाते रहते हैं, जो सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर जो है वो बांटे जाते हैं, दिखाया जाता है, केवल अपने देश में नहीं पर बाहर भी. और ये काम ऐसा नहीं है कि जो कभी वक्त पे किया जाए. ये काम ऐसा है जो रोज़मर्रा मुसलसल तौर के ऊपर एवरी डे कंटिन्यूस
तौर के ऊपर जो है वो किया जाता है। हमारी वेबसाइट्स को हम लोग इस चीज़ को लेकर जो है वो काम करते रहते हैं। उन चीज़ों के ऊपर जो है वो बातचीत होती रहती है, लोगों को जो है वो बुलाया जाता है, बताया जाता है, और जो लोग इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं आइए। मतलब मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि इतिहास एक ऐसी चीज़ है जो आकर देखकर महसूस करने वाली चीज़ है। और देखिए, मैं अगर मेवाड़ की बात करूंगा तो मैं हमेशा अच्छा बोलूंगा, पर खूबसूरती क्या है जब दुश्मन मेवाड़ की बात करे और वो इज्जत और सम्मान से बात करे। तो आज की तारीख में मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे इतिहास से ज़्यादा दुश्मन का इतिहास पढ़ो जिसके अंदर मेवाड़ का जिक्र किया गया है और किस सम्मान के साथ में जो है वो जिक्र किया गया है। तो वो सारी चीज़ें एक दिलचस्पी से बनती हैं, सीखने से बनती हैं, देखने से बनती हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें काम और होना चाहिए। तो जो सही दरवाजे, ये मंच वो नहीं है जिसके अंदर कि मैं ये कहूँ, पर ये ज़रूर है कि मैं आपको इस बारे में कह सकता हूँ कि जहाँ जिन जगहों के ऊपर इस चीज़ की बात होनी चाहिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि वहाँ पर ये बात हो रही है। उम्मीद ये मैं करता हूँ कि जल्द से जल्द इसके नतीजे भी हमारे को देखने को मिलने चाहिए। With this, we come to the end of session. ठीक है सर। Thank you so much. जय हिंद जुगो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार आपसे मिलना हो रहा है, लेकिन इतने समय से आपको फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपको कष्ट। कल मैंने कमेंट भी किया, पर आपने कहा था कि I'm looking forward to see you all। तो अभी अच्छा, वो आप थे? जी सर, वो मैं ही था। तो सर, द सिंपल क्वेश्चन इज दैट आई वांटेड टू आस्क कि मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मेरा इंस्टाग्राम मतलब जो है आप लोग ये समझे कि मैं नहीं चलाता हूँ। मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर जाएं। और एक अच्छी बात है कि सर सबकी स्टोरीज रिपोस्ट करते हैं, तो if you tag me, repost this story। कोशिश नहीं करता हूँ, नहीं तो कल को नहीं करी तो आप लोग सबसे पहले आके। तो सर, ऑन अ सीरियस नोट, क्वेश्चन ये है कि मैंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की रामदास कॉलेज से, एंड यहाँ पे मेरे दोस्त हैं फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड एक बड़ा ग्रीवांस है उनका when we study history, that when I meet the people of Assam, I meet the people of Kerala, they say कि हमारा जो इतिहास है, our history is not talked about. People don't know anything about us, and the universities don't care, the colleges don't care about us. So I try to tell them, I come from Himachal sir, कांगड़ा से मैं आता हूँ, और मुझे अक्सर ये मिलता है कि कांगड़ा के उत्तराखंड में पड़ता है, तो कांगड़ा is actually in Himachal with a long glorious history, but whenever I try to delve in the books, there's no mention of this place. There's no mention of the history of Assam, I would say, no mention of the history of Kangra, Mandi, Himachal Pradesh, Kerala. It's totally very much Delhi-centric and places around Delhi. तो लोगों के दिल में बड़ा दुख है इस चीज़ को लेकर कि उनके इतिहास के बारे में बात नहीं की जाती। तो सर, what would you suggest कि हिस्ट्री राइटिंग कैसे करी जानी चाहिए आगे चल के? आप लोग यहीं से इस चीज़ की शुरुआत करिए ना। आज ही इसी वक्त ही एक मूवमेंट चालू करिए, नो योर हिस्ट्री का, जो अपन लोग पीछे रहे। किसी और के पास में नहीं, अपने पास में ही, अपने हाथ में है। मतलब तो आज की तारीख के अंदर जो है वो ये इस चीज़ का अगर मैं जवाब दूँ तो देखिए, एक ज़माना ऐसा था जब घड़ी किसी के पास नहीं थी पर वक्त सबके पास था। आज सबकी कलाइयाँ देखेंगे तो घड़ी सबके पास है पर वक्त किसी के पास नहीं। तो आज इस चीज़ को बदलने की जो है हम लोगों को आवश्यकता है। इंसान जो है वो, दुनिया ज़रूर छोटी हो गई है पर इंसान इंसान से दूर होने जा रहा है। तो इस चीज़ को कम करें, इंसान और इंसान को पास पर लाएं, इतिहास को जो है हम लोग और करीब लाएं, और यहीं से हिंदू कॉलेज को एक मूवमेंट इस देश के लिए जो है, दुनिया के लिए जो है एक ज्वाला यहीं से जो है वो जगानी चाहिए कि अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को पहचानिए, और जो लोग जिस स्थान से हैं, जिस जगह से हैं, उनको उसके बारे में जो है बड़े गर्व से, छाती ठोक के, जुझारूपन और कर्मठता से जो है उसके बारे में जो है वो बात करनी चाहिए, और एक भारतीय होने के ऊपर अपने को जो है वो गर्व होना चाहिए, और इस चीज़ का अगर झंडा और कोई नहीं, हिंदू कॉलेज को ही उठाना चाहिए। Guys, can we have a huge round of applause for Nara sir? सर, हम सबको पता है कि जो मेवाड़ी पाग जो आप पहनते हैं, और जिस मेवाड़ी पाग को आपके परिवार ने, आपने विश्व स्तरीय प्रसिद्धता दिलाई है। सर, यहाँ पे ज़्यादातर जो आज छात्र बैठे हैं ये मारवाड़ के क्षेत्र से आते हैं, तो सर हम सबकी तरफ से सर आपके लिए मारवाड़ी साफे का भेंट है, अगर आप उसे स्वीकार करें सर।
now come to the end of this session. Thank you so much, sir. It was indeed an honor for all of us, the entire of Hindu College, to have had you with us today. I humbly invite the President of Caucus, Mr. Avanindra Yadav, to felicitate Dr. Laksharaj Singh Mewar. My sincere thanks to all for your presence and patience. Thank you. I request you all to please join the Audi again at 1:30 when we will be starting with the second session of the day. Thank you.